اگر آپ کو میرے آڈیو بکس پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ کے سپورٹ اور سبسکرائب کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ لینٹ ریجوے نے اپنے سب سے اچھے دوست کے منگیتر سے شادی کر لی ہے اور دونوں مصر گھومنے کے لیے گئے ہیں۔ جیکلین لگاتار ان کا پیچھا کر رہی ہے اور سائمن جیکلین سے بہت ناراض ہے۔ پوئرو بھی اسی جہاز پر ہے۔ مسز ایلرٹن جو اپنی سمپل کالی لیس کی ایوننگ ڈریس میں بہت شالین اور اچھی لگ رہی تھی، 2 ڈیک نیچے ڈائننگ روم کی طرف اتری۔ دروازے پر ان کی ملاقات ٹم سے ہوئی۔ ٹم نے کہا، سوری موم، لگا تھا لیٹ ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں ہم لوگ کہاں بیٹھیں گے۔ سلون میں چھوٹے چھوٹے ٹیبل لگے ہوئے تھے۔ مسز ایلرٹن وہی رک گئی جب تک سٹوارٹ جو کچھ لوگوں کو بیٹھا رہا تھا ان کے پاس نہیں آیا۔ ویسے انہوں نے کہا، میں نے وہ ہرکیول پوئرو کو بھی ہمارے ٹیبل پر بلایا ہے۔ موم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ٹم سچ میں حیران اور تھوڑا چڑ گیا تھا۔ اس کی ماں اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ٹم تو عام طور پر بہت ایزی گوئنگ تھا۔ ارے بیٹا، تمہیں برا لگا؟ ہاں، وہ بہت اریٹیٹنگ ہے۔ او نہیں ٹم، میں تو ایسا نہیں مانتی۔ ویسے بھی ہم لوگ اتنے چھوٹے بورڈ پہ ہیں، ایسے کسی اجنبی کو اپنے گروپ میں ملانا اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ دن رات وہی ہمارے ساتھ رہے گے۔ سوری بیٹا، مجھے لگا تمہیں اچھا لگے گا۔ آخر اس کے پاس تو بڑی انٹرسٹنگ کہانیاں ہوگی اور تمہیں ڈیٹیکٹیو سٹوریز پسند بھی تو ہے۔ ٹم نے بس ہوں کہا۔ کاش ماں، آپ ایسے آئیڈیا نہ لایا کرو۔ اب تو کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب تو بلا ہی لیا ہے۔ ٹھیک ہے، جھیل لیں گے۔ اسی وقت سٹوارٹس آ گیا اور انہیں ٹیبل دکھانے لگا۔ مسز ایلرٹن کے چہرے پہ کچھ الجھن سی تھی۔ ٹم کا یہ ری ایکشن تھوڑا عجیب تھا۔ وہ تو عام طور پر بہت خوش مزاج اور ہنسمکھ تھا، ایسا غصہ اس میں کم ہی دیکھا تھا۔ وہ تو فارینرز کو لے کر بھی ایسا نہیں تھا۔ اور خیر، مردوں کو سمجھنا مشکل ہے، اپنے اپنے سیکرٹ فیلنگز ہوتے ہیں۔ وہ ٹیبل پر بیٹھی ہی تھی کہ ہرکیول پوئرو بھی آ گئے۔ انہوں نے تیسری کرسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں میڈم؟ بالکل، بیٹھیے مسٹر پوئرو۔ بہت مہربانی۔ مسز ایلرٹن کو ہلکا سا احساس ہوا کہ پوئرو نے بیٹھتے ہی ایک تیز نگاہ ٹم پر ڈالی اور ٹم نے بھی اپنے چہرے کی ناراضگی چھپانے کی کوشش کی، لیکن پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ پھر مسز ایلرٹن نے ماحول ہلکا کرنے کے لیے کہا، چلو پیسنجر لسٹ پڑھتے ہیں اور سب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے یہ کرنے میں۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ مسز ایلرٹن، مسٹر ٹی ایلرٹن، یہ تو آسان ہے۔ پھر مس جیکلین ڈی بیلفورٹ، وہ بھی آٹوبن والوں کے ٹیبل پر ہے۔ پھر ڈاکٹر بیسنر، وہ موٹے والے ہوں گے، سر بالکل شیو کیا ہے اور مونچھیں بھی، لگتا ہے جرمن ہوگے، اور دیکھو کتنی زور زور سے سوپ پی رہے ہیں۔ سچ میں وہاں سے کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی۔ مسز ایلرٹن نے آگے پڑھا، مس باؤس، چلو اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ پھر مسٹر اور مسز ڈوئل، ارے ہاں، اس ٹرپ کے ہیرو اور ہیروئن، واقعی بہت سندر ہے وہ، اور کیا شاندار ڈریس پہنی ہے۔ ٹم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لینٹ اور اس کا پتی اینڈریو پیننگٹن کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ لینٹ نے سفید ڈریس پہنی تھی اور موتی کی مالا۔ مجھے تو یہ بہت سمپل لگ رہی ہے، ٹم بولا، بس ایک کپڑا لپیٹ لیا اور ایک رسی باندھ لی۔ ارے بیٹا، اس کی ماں ہنس پڑی، اسی سمپل ڈریس کی قیمت 80 گنی ہے۔ عورتیں اپنے کپڑوں پر اتنا کیوں خرچہ کرتی ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ پھر مسز ایلرٹن باقی پیسنجرز کو پہچاننے لگی۔ مسٹر فینترپ، شاید وہ ہوں گے، بالکل چپ چاپ لیکن انٹیلیجنٹ چہرہ۔ پوئرو نے بھی کہا، ہاں بہت سمجھدار ہے، بولتا نہیں ہے پر سب دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہاں چھٹیاں منانے والا ٹائپ نہیں ہے، سوچتا ہوں یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ مسٹر فرگیوسن، لگتا ہے وہی اینٹی کیپیٹلسٹ لڑکا۔ مسز اور مس آٹربون ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں۔ مسٹر پیننگٹن
अंकल एंड्रू, ऐसा भी कहा जाता है उन्हें। अच्छे दिखते हैं। माँ बस भी करो, टिम ने कहा। नहीं, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सख्त जबड़ा है, शायद उन बिजनेसमैन टाइप जो पेपर में पढ़ने को मिलते हैं। बहुत अमीर होगा। अब अगले हैं मिस्टर हर्क्यूल पोयरो, जिनकी टैलेंट यहाँ बेकार जा रही है। काश कोई क्राइम हो जाता ताकि मिस्टर पोयरो को काम मिल जाए, है ना टिम? उनकी मजाक की बात पर भी टिम का चेहरा फिर से चिढ़ गया। मिसेस एलर्टन ने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मिस्टर रिकेटी, एक इटालियन, फिर मिस रॉबसन और आखिर में मिस वैन शाइलर। ये तो आसान है। वही बदसूरत बूढ़ी अमेरिकी औरत जो किसी से बात नहीं करेगी जब तक सामने वाला उसकी ऊंची कसौटी पर खरा न उतरे। कमाल की है वो भी, बिल्कुल पुराने जमाने का नमूना। उसके साथ जो दो औरतें हैं वही होगी मिस बॉवर्स और मिस रॉबसन। शायद एक उनकी सेक्रेटरी जो चश्मा लगाए दुबली सी है, और दूसरी कोई गरीब रिश्तेदार जो बेचारी फिर भी मजे कर रही है, चाहे उसे नौकरानी जैसा ही क्यों न रखा जा रहा हो। मेरा तो अंदाजा है कि रॉबसन वो पतली सेक्रेटरी है और बॉवर्स वही गरीब रिश्तेदार। गलत माँ, टिम हंस पड़ा। उसकी नाराजगी एकदम गायब हो गई थी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि डिनर से पहले मैं लॉन्ज में था और वो बूढ़ी मैडम अपनी साथी औरत से कह रही थी, मिस बॉस कहाँ है? फौरन बुलाओ उसे कॉर्नेलिया। और कॉर्नेलिया बिल्कुल वफादार कुत्ते की तरह दौड़ गई। मुझे मिस वैन शाइलर से बात करनी पड़ेगी, मिसेस एलर्टन ने सोचा। फिर टिम मुस्कुराया। वो तुम्हें झाड़ देगी माँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो उसके पास जाकर धीरे धीरे मगर साफ और अच्छे लहजे में अपने किसी टाइटल वाले दूर के रिश्तेदार की कहानी छेड़ दूंगी। शायद तुम्हारे सेकंड कजिन वंस रिमूव्ड ड्यूक ऑफ ग्लासगो का जिक्र कर दूं। बस काम बन जाएगा। कितनी चालाक हो माँ, टिम हंस पड़ा। डिनर के बाद की बातें भी उन लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प साबित हुई जो इंसानों की फितरत को पढ़ना जानते थे। वो नौजवान समाजवादी लड़का जो वाकई मिस्टर फर्ग्यूसन ही निकला, बाकी यात्रियों के साथ ऊपर के डेक के ऑब्जर्वेशन लाउंज में बैठने की बजाय स्मोकिंग रूम में चला गया। उसे वहां की महफिल से कोई मतलब नहीं था। मिस वैन शैलर ने अपने लिए सबसे बढ़िया और हवा रही जगह पकड़ ली। वो सीधे उस टेबल पर चली गई जहां मिसेस ऑटरबॉर्न बैठी थी और बोली, माफ करिएगा, मुझे लगता है मेरी बुनाई यही छूट गई थी। उनकी पैनी नजर के आगे मिसेस ऑटरबॉर्न का पगड़ी वाला सिर झुक गया और वो सीट छोड़कर हट गई। मिस वैन शैलर ने आराम से अपनी जगह बना ली और अपने साथ वाली औरतों को भी बिठा लिया। मिसेस ऑटरबॉर्न ने पास ही बैठकर बातें करने की कोशिश की, लेकिन मिस वैन शैलर ने इतनी ठंडी शालीनता से जवाब दिए कि उन्होंने जल्दी ही हार मान ली। अब मिस वैन शैलर बिल्कुल अकेली बैठी रही। मिस्टर और मिसेस डॉयल ने एल्टन्स के साथ बैठना पसंद किया। डॉक्टर बेसनर ने अपने साथ मिस्टर फैंथरॉफ को रोक लिया। जैकलीन डे बेलफोर्ट अकेली एक किताब लेकर बैठ गई। रोजली ऑटरबॉर्न बेचैन घूमती रही। मिसेस एलर्टन ने उसे 2-3 बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो ढंग से बात नहीं कर रही थी। मोज़ियो हर्क्यूल पोयरो ने अपनी शाम का समय मिसेस ऑटरबॉर्न की लेखिका बनने की कहानी सुनते हुए बिताया। रात को अपनी कैबिन की तरफ जाते वक्त पोयरो की मुलाकात जैकलीन डे बेलफोर्ट से हो गई। वो रेलिंग पर झुकी खड़ी थी और जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसके चेहरे पर गहरी उदासी देखकर पोयरो ठहर गए। अब उसके चेहरे पर न कोई बेफिक्री थी, न कोई ताना देने वाली मुस्कान और न ही कोई चालाक जीत की झलक। गुड नाइट मैडमोजेल, पोयरो ने कहा। गुड नाइट मोज़ियो पोयरो, उसने हिचकिचाते हुए कहा। फिर बोली, आपको मुझे यहाँ देखकर हैरानी हुई होगी। हैरानी नहीं, अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, पोयरो ने गंभीरता से कहा। मेरे लिए अफसोस? हाँ वही, आप एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी है। जैसे हम सब इस जहाज में सफर पर निकले हैं, वैसे ही आप भी अपनी एक निजी यात्रा पर है, तेज बहती नदी में, खतरनाक चट्टानों के बीच और पता नहीं किन हादसों की तरफ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सच है। आप उस रस्सी को काट चुकी है जो आपको सुरक्षित किनारे से बांध रही थी। अब शायद चाहे
लौटना भी चाहे तो लौट नहीं सकती। वो धीरे धीरे बोली, ये सच है। फिर सिर पीछे झटक कर बोली, चलो जैसी भी हो, अपनी किस्मत का पीछा तो करना ही पड़ता है। ध्यान रखना मैडमोजेल, कहीं वो किस्मत झूठी ना हो। वो हंस पड़ी और मजाक में गधे वाले लड़कों की आवाज की नकल करते हुए बोली, बहुत खराब तारा साहब, वो तारा गिर जाएगा। उस रात पॉयरो जैसे ही सोने ही वाले थे, तभी किसी की धीमी धीमी आवाजों से उनकी नींद खुली। उन्होंने साइमन डॉयल की आवाज पहचानी। वही शब्द दोहरा रहा था जो उसने उस दिन जहाज चलने पर कहे थे। तो इस सब से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, पॉयरो ने सोचा, अब तो इस सब से गुजरना ही पड़ेगा। पॉयरो को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। अध्याय 9। स्टीमर अगली सुबह जल्दी एस जेबुआ पहुंच गया। कॉर्नेलिया रॉबसन अपने चेहरे पर खिली मुस्कान और बड़े से हिलते डुलते हैट के साथ सबसे पहले किनारे पर उतरने वालों में थी। कॉर्नेलिया किसी को टोकने या नीचा दिखाने में अच्छी नहीं थी। वो भली और प्यारी स्वभाव की लड़की थी जो हर किसी को पसंद करने की कोशिश करती थी। जब उसने हर्क्यूल पॉयरो को सफेद सूट, गुलाबी शर्ट, बड़ी काली बो टाई और सफेद टोपी में देखा तो वो अजीब महसूस नहीं कर रही थी, जबकि अगर यही सीन मिस वैन स्कूलर देखती तो जरूर नाक भौए सिकोड़ लेती। जब दोनों साथ में स्पिंक्स वाली गली में चल रहे थे तो पॉयरो ने बात शुरू की, आपके साथी लोग मंदिर देखने नहीं आ रहे? कॉर्नेलिया ने तुरंत जवाब दिया, अरे वो क्या है ना, मेरी कजिन मेरी, मतलब मिस वैन स्कूलर, वो सुबह जल्दी उठती नहीं। उन्हें अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो चाहती है कि उनकी नर्स मिस बॉवस भी उनके लिए काम करे। और वैसे भी उन्होंने कहा कि ये मंदिर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बड़ी दयालु है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो जा सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, पॉयरो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भली भाली कॉर्नेलिया ने बड़ी मासूमियत से हामी भरी। हाँ, वो बड़ी अच्छी है। देखिए, उन्होंने मुझे इस ट्रिप पर लाना कितना बड़ा काम किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी से कहकर मुझे भी बुला लेंगी। और आपको यहाँ मजा आ रहा है? ओह, बहुत मजा। मैंने इटली देखी, वेनिस, पिज़ा, फिर काहिरा। बस काहिरा में कजिन मेरी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ज्यादा घूम नहीं पाई। और अब ये शानदार नदी यात्रा। पॉयरो मुस्कुराते हुए बोले, आपका दिल बहुत खुश रहने वाला है मैडमोजेल। फिर वो सोचते हुए कॉर्नेलिया से आगे चलती रोजली की तरफ देखने लगे, जो अकेली और गुस्से में लगी दिख रही थी। कॉर्नेलिया ने उनकी नजर पकड़ ली और बोली, अच्छी दिखती है ना, बस थोड़ी अकड़ू लगती है। बहुत अंग्रेजी टाइप है, लेकिन उतनी सुंदर तो नहीं जितनी मिसेस डॉयल। मैं तो कहती हूँ, मिसेस डॉयल जैसी खूबसूरत और एलिगेंट लेडी मैंने कभी नहीं देखी। और उनके हस्बैंड तो उन पर जान छिड़कते हैं, है ना? और वो ग्रे बालों वाली आंटी भी बड़ी रॉयल लगती है। सुना है वो किसी ड्यूक की कजिन है। कल रात भी उन्हीं की बातें कर रही थी, लेकिन उनके पास खुद का कोई टाइटल नहीं है ना? ऐसे ही वो बड़बड़ाते हुए बातें करती रही, जब तक कि गाइड ने सबको रोककर बोलना शुरू नहीं कर दिया। ये मंदिर मिस्र के देवता आमुन और सूर्य देवता रेहारकते को समर्पित है, जिनका चिन्ह बांस का सिर होता है। गाइड बोले जा रहा था। डॉक्टर बेसनर अपने गाइड बुक को पकड़कर जर्मन में बड़बड़ा रहे थे। उन्हें पढ़ना ज्यादा पसंद था। टिम मेल्टन इस पार्टी में नहीं आया था। उसकी माँ मिस्टर फेंथरॉफ से धीरे धीरे बातों की शुरुआत कर रही थी। एंड्रयू पेनिंगटन अपने हाथ में लिनेट डॉयल का हाथ डाले गाइड की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। 65 फीट ऊंचा है, मुझे तो थोड़ा कम लग रहा है। बढ़िया बंदा था ये रोमेसिस, एकदम मिस्र का बिजनेसमैन। बिल्कुल अंकल एंड्रयू, लिनेट ने हंसते हुए कहा। एंड्रयू ने उसे सराहते हुए देखा। आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो लिनेट। मैं तो थोड़े दिन से तुम्हारी हालत देखकर परेशान था, बड़ी मुरझाई सी लग रही थी। फिर सब बातें करते करते बोट की तरफ लौटे। करनाक फिर से नदी में बहने लगा। अब आसपास का नजारा भी पहले जैसा सख्त नहीं था।
यहाँ वहाँ खजूर के पेड़ और हरियाली दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे नजारे में आए बदलाव ने सबके दिल से कोई भारी बोझ हटा दिया हो। टिम एल्टन अब अपनी चुप्पी और उदासी से बाहर आ गया था। रोज़ेली का भी मूड थोड़ा ठीक लग रहा था। लिनेट तो जैसे बिल्कुल हल्की फुल्की और खुश लगने लगी थी। पेनिंगटन ने कहा, हनीमून पे बिजनेस की बातें करना ठीक नहीं, लेकिन बस 2-4 चीजें जरूरी है। अरे बिल्कुल अंकल एंड्रयू। लिनेट ने तुरंत प्रोफेशनल मोड ऑन कर लिया। मेरी शादी के बाद कुछ चीजें तो बदली ही है। बस वही तो, कभी न कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए होंगे। क्यों ना अभी कर दूं? पेनिंगटन ने इधर उधर देखा। ऑब्जर्वेशन सैलून का उनका कोना खाली था। बाकी लोग बाहर डेक पर थे। अंदर बस मिस्टर फर्ग्यूसन थे, जो एक टेबल पे बैठकर बियर पी रहे थे और बीच बीच में सीटी बजा रहे थे। हर्क्यूल पॉयरो सामने बैठे थे और एक कोने में मिस वैन स्क्यूलर किताब पढ़ रही थी। ठीक है फिर, पेनिंगटन बोले और बाहर चले गए। लिनेट और साइमन एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे। वो धीमी धीमी मुस्कान जो धीरे धीरे पूरे चेहरे पर फैलती है। सब ठीक है स्वीट? साइमन ने पूछा। हाँ, अब सब ठीक लग रहा है। अजीब है, पहले जितनी घबराहट थी अब कुछ नहीं। साइमन ने गहरी आवाज में कहा। तुम वाकई कमाल हो। तभी पेनिंगटन वापस आ गया। उसके हाथ में ढेर सारे पेपर्स थे। हे ईश्वर, लिनेट ने कहा, क्या मुझे सब साइन करने होंगे? पेनिंगटन ने हंसते हुए कहा, पता है ये थोड़ा झंझट वाला है, लेकिन बस तुम्हारे काम सही तरीके से सेट कर लेना चाहता हूँ। ये देखो, 5th एवेन्यू प्रॉपर्टी की लीज है, फिर वेस्टरलैंड कंसेशन के पेपर। वो पेपर उलट पुलट करता रहा। साइमन ऊब कर उबासी लेने लगा। इसी बीच डेक का दरवाजा खुला और मिस्टर फैंथ्रॉफ अंदर आ गए। वो बिना मतलब इधर उधर देखने लगे, फिर पॉयरो के पास आकर खड़े हो गए और बाहर पीले रेगिस्तान और नीले पानी को देखने लगे। यहाँ साइन करो, पेनिंगटन ने पेपर सामने रखते हुए कहा। लिनेट ने पेपर उठाया, जल्दी से पढ़ा, पहला पन्ना फिर से देखा, फिर पेन उठाकर लिखा, लिनेट डॉयल। पेनिंगटन ने वो पेपर लिया और दूसरा सामने रख दिया। फैंथ्रॉफ उसके आसपास खिड़की से बाहर कुछ देखने लगे। ये बस ट्रांसफर है, पेनिंगटन बोला, पढ़ने की जरूरत नहीं। पर लिनेट ने फिर भी नजर दौड़ा ली। फिर तीसरा पेपर आया। सब सिंपल ही है, पेनिंगटन बोला, बस लीगल भाषा है और कुछ नहीं। साइमन ने फिर उबासी ली। ओ मेरी जान, क्या तुम हर एक लाइन पढ़ोगी? ऐसे तो लंच टाइम तक लगे रहोगी। मैं हमेशा पूरा पढ़ती हूँ, लिनेट बोली। पापा ने यही सिखाया था। कभी कभी छोटी सी गलती भी बड़ी पड़ जाती है। पेनिंगटन ने थोड़ा बनावटी हंसी में कहा, कमाल की बिजनेस वुमन हो लिनेट। ये मुझसे तो कहीं ज्यादा सीरियस है, साइमन हंसते हुए बोला। मैंने तो कभी कोई लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं, बस जहां डॉटेड लाइन पे साइन बोलते हैं, साइन कर देता हूँ। ये तो बहुत लापरवाही है, लिनेट ने नाराजगी से कहा। अरे मुझे बिजनेस का कोई शौक नहीं, साइमन ने हंसते हुए कहा। कह दो साइन करो, मैं कर दूंगा, सबसे आसान तरीका है। एंड्रयू पेनिंगटन बड़े ध्यान से साइमन को देख रहा था। फिर उसने अपने होठों के ऊपर हाथ फेरते हुए थोड़ा सूखा सा कहा, कभी कभी थोड़ा रिस्की नहीं हो जाता डॉयल? बिल्कुल नहीं, साइमन ने लापरवाही से कहा। मैं उन लोगों में से नहीं जो सोचते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें धोखा देने के पीछे पड़ी है। मैं भरोसा करने वाला इंसान हूँ और यकीन मानो, इससे फायदा ही होता है। मुझे तो शायद ही कभी किसी ने धोखा दिया हो। अचानक सबको हैरान करते हुए अब तक चुपचाप बैठे मिस्टर फैंथ्रॉफ घूमकर लिनेट से बोले, माफ कीजिए अगर मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा कि आपकी बिजनेस वाली समझदारी काबिले तारीफ है। मैं वकील हूँ और मेरी फील्ड में महिलाएं अक्सर बिजनेस के मामले में कमजोर होती है। कभी भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन न करना बहुत बढ़िया आदत है। उन्होंने हल्की सी झुककर सलाम किया, फिर थोड़ा शर्माते हुए वापस नाइल नदी के किनारों की तरफ देखने लगे।
लिनेट थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, अरे थैंक यू, और हंसी रोकने के लिए होठ काट लिए। वो लड़का कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा था। एंड्रयू पेनिंगटन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। साइमन डॉयल समझ नहीं पाया कि गुस्सा करे या हंसे। मिस्टर फैंथ्रॉफ के कान भी लाल हो गए थे। लिनेट मुस्कुराते हुए बोली, अगला प्लीज, और पेनिंगटन की तरफ देखा। लेकिन पेनिंगटन थोड़ा परेशान सा बोला, मुझे लगता है ये सब बाद में ही कर लेंगे। वैसे भी जैसा कि डॉयल कह रहे थे, अगर ये सारे कागज पढ़ने लगे तो दो फेर हो जाएगी। नजारे देखने भी तो आए हैं। वैसे भी पहले दो पेपर ही जरूरी थे, बाकी का काम बाद में निपटा लेंगे। लिनेट बोली, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। तीनों स्विंग डोर से बाहर निकल गए। हर्क्यूल पॉयरो ने अपना सिर घुमाया और सोचते हुए मिस्टर फैंथ्रॉफ की पीठ देखी। फिर उनकी नजर मिस्टर फर्ग्यूसन पर गई, जो अब भी सिर पीछे टिकाकर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। आखिर में पॉयरो ने मिस वैन शूलर को देखा, जो कोने में बैठकर गुस्से से फर्ग्यूसन को घूर रही थी। तभी पोर्ट साइड का स्विंग डोर खुला और कॉर्नेलिया रॉबसन जल्दी जल्दी अंदर आई। इतनी देर कहाँ लग गई? बुजुर्ग महिला ने झिड़कते हुए कहा। कहाँ चली गई थी? कॉर्नेलिया ने धीमे से कहा, सॉरी कजिन मेरी, उन वही नहीं था जहां आपने बताई थी, किसी और डिब्बे में रखी मिली। बिल्कुल निकम्मी हो तुम। मेहनती तो हो, पता है मुझे, लेकिन थोड़ा समझदार और तेज भी बनो। बस ध्यान लगाने की जरूरत है। कॉर्नेलिया शर्मिंदा होकर बोली, सॉरी कजिन मेरी, मैं वाकई बेहद बेवकूफ हूँ। कोई बेवकूफ नहीं होता अगर कोशिश करे। मैं तुम्हें इस ट्रिप पर इसलिए लाई हूँ कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर सको। कॉर्नेलिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। माफ कीजिए कजिन मेरी, और मिस बॉवर कहाँ है? मेरे ड्रॉप्स का टाइम 10 मिनट पहले ही हो गया। जाकर अभी बुलाओ। डॉक्टर ने कहा था कि टाइम पर लेना जरूरी है। तभी मिस बॉवर अंदर आई, एक छोटी दवाई की शीशी हाथ में लिए। आपकी दवाई मिस वैन शूलर। बुजुर्ग महिला भड़क उठी, मुझे 11 बजे लेनी थी। मुझे देर बिल्कुल पसंद नहीं। मिस बॉवर ने घड़ी देखते हुए कहा, अभी 11 बजने में आधा मिनट है। मेरी घड़ी में तो 10 मिनट ऊपर हो गए। मिस बॉवर ने शांत लहजे में कहा, मुझे यकीन है मेरी घड़ी सही है, कभी आगे पीछे नहीं होती। मिस वैन शूलर ने दवाई का ग्लास गले से उतारा और बोले, मैं तो और ज्यादा खराब महसूस कर रही हूँ। मिस बॉवर्स ने बड़ी बेरुखी से कहा, सुनकर अफसोस हुआ मिस वैन शूलर। लेकिन उनकी आवाज में कोई अफसोस नहीं था, बस औपचारिकता निभा रही थी। मिस वैन शूलर झुंझला कर बोली, यहाँ बहुत गर्मी है, चलो बाहर डेक पर कोई अच्छी सी कुर्सी देखो। मिस बॉवर्स तुम देखो। कॉर्नेलिया मेरा बुनाई का सामान उठाओ, ध्यान रखना गिराना मत, फिर ऊन लपेटना है। और सब बाहर चले गए। मिस्टर फर्ग्यूसन ने पैर फैलाते हुए लंबी सांस ली और आसपास के लोगों से बोला, काश मैं उस औरत को पकड़कर मार डालता। पॉयरो ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें वो पसंद नहीं है ना? फर्ग्यूसन बोला, पसंद? बिल्कुल नहीं। उस औरत ने आज तक किसी का कोई भला नहीं किया, बस दूसरों पर जीती है, परजीवी है, और बड़ी ही बुरी किस्म की। इस नाव पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बिना दुनिया बेहतर चल सकती है। पॉयरो ने कहा, सच में? फर्ग्यूसन बोला, हाँ, अभी जो लड़की यहाँ आई थी, जो शेयर्स पे साइन कर रही थी। हजारों गरीब मजदूर खट रहे हैं ताकि वो रेशमी कपड़े पहन सके। कोई काम किया है उसने जिंदगी में? पॉयरो ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि वो इंग्लैंड की सबसे अमीर औरतों में से है? फर्ग्यूसन ने घूर कर कहा, ऐसे आदमी ने जिससे आप कभी बात भी न करे, जो अपने हाथों से काम करता है और शर्माता नहीं, कोई आपकी तरह सज धज कर घूमने वाला नहीं। फिर उसने पॉयरो की टाई और पिंक शर्ट को घूरा। पॉयरो ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ और मुझे उस पर फक्र है। फर्ग्यूसन ने बस नाक से हुकार भरी और बोला, इसे सबको गोली मार देनी चाहिए। पॉयरो ने हंसते हुए कहा, क्या गजब का गुस्सा है तुम्हारे अंदर। फर्ग्यूसन बोला, कोई भी अच्छाई बिना तोड़ फोड़ के नहीं हो सकती। पहले गिराओ,
फिर बनाओ। पोयरो ने कहा। हाँ, गिराना आसान है और शोर वाला काम है। फर्ग्यूसन ने पूछा, आप क्या करते हैं? पोयरो ने जरा अकड़ से कहा, मैं मिडल मैन नहीं, टॉप मैन हूँ। फर्ग्यूसन ने पूछा, मतलब? पोयरो बोला, मैं डिटेक्टिव हूँ। ये सुनते ही फर्ग्यूसन चौंक गया। हे ईश्वर, वो लड़की अपने साथ जासूस लिए घूमती है, इतनी डरपोक है। पोयरो ने नाराज होकर कहा, मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं, मैं छुट्टी पर हूँ। फर्ग्यूसन ने कहा, और मैं भी, लेकिन असल में मैं हालत का जायजा ले रहा हूँ। पोयरो ने सिर हिलाया और डेक पर निकल गए। डेक पर मिस वैन शूलर सबसे अच्छी जगह पर बैठी थी। कॉर्नेलिया उनका गोला पकड़कर उनके सामने बैठी थी और मिस पॉवर्स एक पत्रिका पढ़ रही थी। पोयरो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। नाव के पीछे जाते हुए वो एक औरत से टकरा गए। उसका चेहरा डरा हुआ था। सांवली, तीखी, नाक नक्श वाली लड़की। वो काले कपड़ों में थी और एक मोटे से अफसर से बात कर रही थी। दोनों के चेहरे पर डर और घबराहट थी। पोयरो को शक हुआ कि ये लोग क्या बात कर रहे थे। फिर वो बोट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े। तभी एक कैबिन से मिसेस ऑटरबॉर्न निकल आई और सीधे पोयरो से टकरा गई। वो लाल रंग की चमकदार ड्रेसिंग गाउन में थी। ओह, माफ कीजिए मिस्टर पोयरो। फिर अपने गले में हाथ रखकर बोली, ये नाव का हिलना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरी तो हालत ही खराब है और कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं। वो लड़की, मेरी बेटी, कोई सहानुभूति नहीं उसे। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, सब कुछ, और अब देखिए। मिसेस ऑटरबॉर्न रोने लगी। मैंने उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और अब कोई परवाह नहीं। मैं सबको बता दूंगी। पोयरो ने उन्हें रोका। मैं आपकी बेटी को भेज दूंगा। आप कैबिन में चलिए, यही रहना ठीक है। मिसेस ऑटरबॉर्न बोली, नहीं, मैं सबको बताना चाहती हूँ, सबको। पोयरो ने कहा, बहुत खतरनाक है, समुंदर बहुत उफान पर है, आप गिर सकती है। मिसेस ऑटरबॉर्न थोड़ा डरी। सच में? आपको सच में ऐसा लगता है? पोयरो ने सिर हिलाया। हाँ। पोयरो कामयाब रहे। मिसेस ऑटरबॉर्न थोड़ी हिचकी, फिर वापस अपने कैबिन में चली गई। पोयरो ने गहरी सांस ली, नथुने फड़फड़ाए, फिर सिर हिलाते हुए वो उस जगह पहुंचे जहां रोज़ली ऑटरबॉर्न मिसेस एलर्टन और टिम के साथ थी। पोयरो ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, मैडमोजेल। रोज़ली अभी हंस रही थी, पर अचानक उसका चेहरा उतर गया। उसने शक भरी नजर पोयरो पर डाली और जल्दी जल्दी डेक पर चल दी। मिसेस एलर्टन ने कहा, मैं उस लड़की को समझ ही नहीं पाती। कभी बहुत अच्छे मूड में होती है तो कभी इतनी रूखी हो जाती है। टिम बोला, पूरी बिगड़ी हुई और जिद्दी है। मिसेस एलर्टन ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो बस दुखी है। टिम ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे हम सबके अपने अपने दुख होते हैं। उसकी आवाज में कुछ सख्ती और बेरुखी थी। तभी एक तेज आवाज गूंजी। मिसेस एलर्टन खुशी से बोली, लंच का समय, मैं तो भूख से मर रही हूँ। शाम को पोयरो ने देखा कि मिसेस एलर्टन मिस वैन शूलर से बातें कर रही थी। जब पोयरो वहां से गुजरे, मिसेस एलर्टन ने आंख मारकर इशारा किया। वो कह रही थी, बिल्कुल, कैलफ्राइस कैसल में, डियर ड्यूक। ऑनीलिया, जो अब मिस वैन शूलर की सेवा से छूट गई थी, डेक पर थी। डॉक्टर बेसनर उसे इजिप्टोलॉजी, मिस्र का इतिहास के बारे में बता रहे थे, जो उन्होंने किसी किताब से पढ़ा था। कॉर्नेलिया बड़े ध्यान से सुन रही थी। वही रेलिंग के पास टिम एलर्टन झुके हुए बोले, दुनिया तो बेकार है। रोज़ली ऑटरबॉर्न ने जवाब दिया, हाँ, बहुत नाइंसाफी है। कुछ लोगों के पास सब कुछ है। पोयरो ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, अच्छा है कि अब वो जवान नहीं रहे। सोमवार की सुबह कर्नाक नाव के डेक पर खुशी और प्रशंसा की कई आवाजें सुनाई दी। स्टीमर किनारे पर खड़ा था और कुछ 100 गज दूर सुबह की धूप में चमकता हुआ एक विशाल मंदिर चट्टान से निकला हुआ दिखाई दे रहा था। चट्टान से तराशे गए 4 विशाल पुतले नील नदी की ओर देख रहे थे और उगते सूरज का सामना कर रहे थे।
कॉर्नेलिया रॉबसन थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली। ओ मोज़ियो पॉयरो, ये है ना कमाल का। मेरा मतलब है ये मूर्तियां इतनी बड़ी है, शांत है, और इन्हें देखकर लगता है जैसे हम बहुत छोटे हैं, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा, या फिर लगता है जैसे कुछ भी ज्यादा मायने नहीं रखता, है ना? मिस्टर फैंथ्रॉफ जो पास ही खड़े थे धीरे से बोले, बहुत, काफी प्रभावशाली, शानदार है ना? साइमन डॉयल चलते हुए बोला। फिर उसने पॉयरो से धीमे स्वर में कहा, देखिए, मुझे मंदिर विंदिर देखने का ज्यादा शौक नहीं, लेकिन ऐसी जगह कुछ अलग ही एहसास देती है। अगर आप समझ सके मेरा मतलब। वो पुराने फैरो वाकई अद्भुत लोग रहे होंगे। बाकी लोग आगे बढ़ गए। सैमन ने और भी धीमे स्वर में कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस यात्रा पर आए। कुछ क्लियर सा हो गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही है। लिनेट को अब दोबारा आत्मविश्वास मिल गया है। उसका कहना है कि अब उसने जैकी को नाव पर देखा तो बुरा लगा, लेकिन अचानक सब कुछ बेकार सा लगने लगा। हाँ, ऐसा संभव है, पॉयरो ने कहा। अब हम दोनों ने तय किया है कि अब हम जैकी से बचने की कोशिश नहीं करेंगे। उसे सामने से ही जवाब देंगे और दिखा देंगे कि उसकी ये हरकत हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। ये बस बेहुदा व्यवहार है, बस यही। उसे लगा था कि वो हमें डरा रही है, लेकिन अब हम डर नहीं रहे। ये उसे दिखा देगा। हाँ, पॉयरो ने सोचते हुए कहा, तो फिर ये तो अच्छा है ना? ओह हाँ हाँ, लिनेट डेक पर आई। उसने एप्रिकॉट रंग की लिनन की ड्रेस पहनी थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसने पॉयरो को ज्यादा उत्साह से नहीं देखा, बस हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपने पति को अपने साथ ले गई। पॉयरो ने मन ही मन हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि वो अपनी आलोचना के कारण बहुत लोकप्रिय नहीं बने। लिनेट की हर कोई हमेशा तारीफ करता रहा और पॉयरो इस नियम से थोड़ा हट गए थे। मिसेस एल्टन पास आई और धीरे से बोली, इस लड़की में कितना गुरूर है। अस्वान में वह चिंतित और दुखी सी लग रही थी। आज वह इतनी खुश लग रही है कि डर सा लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। पॉयरो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी समूह को इकट्ठा होने का निर्देश मिला। गाइड, जिसे ड्रैगोमैन कहा जाता है, ने सभी को मंदिर देखने के लिए किनारे ले जाना शुरू किया। पॉयरो एंड्रयू पेनिंगटन के साथ चल पड़े। ये आपका पहला मिस्र दौरा है ना? पेनिंगटन ने पूछा। नहीं, मैं पहले भी काहिरा आया था, लेकिन नील नदी के ऊपर की यात्रा मेरी पहली है। आप कार्मेनिक जहाज से आए हैं, है ना? मैडम डॉयल ने मुझे बताया। पेनिंगटन ने ध्यान से पॉयरो की ओर देखा। हाँ, सही कहा आपने। क्या उस जहाज पर आप मेरे कुछ दोस्तों से मिले थे? रशिंगटन स्मिथ्स? माफ कीजिए, ऐसा नाम मुझे याद नहीं। जहाज में काफी लोग थे और मौसम भी खराब था। कई यात्री बाहर ही नहीं आए और वैसे भी यात्रा इतनी छोटी थी कि कोई किसी को जान नहीं पाया। हाँ, ये तो सही है। मैडम डॉयल और उनके पति से आपका अचानक मिलना एक सुखद संयोग रहा। आपको उनकी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, मिसेस डॉयल ने मुझे लिखा था, लेकिन वह पत्र मुझे बहुत देर से मिला, काहिरा में मिलने के बाद। आप उन्हें काफी समय से जानते हैं, है ना? हाँ, मैं लिनेट रिजवे को तब से जानता हूँ जब वो बस इतनी सी थी। उन्होंने हाथ से इशारा किया। उसके पिता और मैं जीवन भर के दोस्त थे। एक शानदार और सफल व्यक्ति थे, मेलोइश रिजवे। सुना है उनकी बेटी को काफी बड़ी संपत्ति मिली है। ओ माफ कीजिए, शायद ये कहना सही नहीं था। पेनिंगटन थोड़ा हंसे। अरे ये तो सबको पता है। हाँ, लिनेट बहुत अमीर है, लेकिन हाल ही में मंदी से तो हर तरह के शेयर पर असर पड़ता ही है, चाहे वो कितने भी मजबूत क्यों ना हो। पेनिंगटन ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। हाँ, कुछ हद तक ये सही है। आजकल स्थिति बहुत कठिन है। पॉयरो ने कहा, मुझे लगता है कि मैडम डॉयल का व्यावसायिक दिमाग तेज है। बिल्कुल सही। लिनेट एक समझदार और व्यवहारिक लड़की है। फिर वे सभी रुक गए। गाइड ने सभी को समझाना शुरू किया
कि ये मंदिर महान रामेसेस ने बनवाया था। रामेसेस की 4 विशाल मूर्तियां दो दो जोड़ों में मंदिर के दोनों ओर चट्टान से खुदी हुई थी और वे उन छोटे छोटे पर्यटकों की टोली की ओर देख रही थी। सिग्नोर रिचेटी गाइड की बातों को अनदेखा करते हुए मंदिर की द्वार के दोनों ओर बनी मूर्तियों के नीचे खुदे हुए चित्रों को ध्यान से देख रहे थे, जिनमें अफ्रीकी और सीरियाई बंदियों को दिखाया गया था। जब सभी लोग मंदिर के अंदर गए तो वहां की हल्की अंधेरी शांति ने सबको एक अलग सी अनुभूति दी। भीतर की दीवारों पर बने रंग बिरंगे चित्र अभी साफ दिखाई दे रहे थे और गाइड उन्हें दिखा रहा था। समूह धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में बंट गया। डॉक्टर बेसनर एक बेडेकर गाइड बुक से जर्मन में ऊंचे स्वर में पढ़ते जा रहे थे और बीच बीच में कॉर्नेलिया के लिए अनुवाद भी करते जा रहे थे, जो शांति से उनके साथ चल रही थी। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला। मिस वैन शूलर अपनी सदी हुई सहायिका मिस बाउवर्स के सहारे अंदर आई और आदेशात्मक स्वर में बोली, कॉर्नेलिया, इधर आओ। कॉर्नेलिया को रुकना ही पड़ा और डॉक्टर बेसनर के पाठ का अंत हो गया। डॉक्टर बेसनर ने अपनी मोटी ऐनकों के पीछे से मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा और पॉयरो से बोले, बहुत अच्छी लड़की है वो। इन दिनों की लड़कियों की तरह कुपोषित नहीं लगती। नहीं नहीं, उसमें अच्छे आकार है और बहुत ध्यान से सुनती है। उसे सिखाना अच्छा लगता है। पॉयरो के मन में ये बात आई कि कॉर्नेलिया का भाग्य शायद ऐसा ही है, या तो कोई उसे डांटता है या सिखाता है। वो हमेशा सुनने वाली होती है, बोलने वाली नहीं। इसी बीच मिस बॉवर्स, जिन्हें कॉर्नेलिया की जरूरत ने कुछ पल के लिए छोड़ दिया था, मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। एक शांत और तटस्थ नजरों से चारों ओर देख रही थी। मंदिर के भीतर एक और गर्भगृह था, जहां 4 मूर्तियां बनी थी, गंभीर और शांत, जैसे समय से परे कोई शक्ति। उन मूर्तियों के सामने लिनेट और उसका पति साइमन खड़े थे। लिनेट का हाथ साइमन की बाहों में था। उसका चेहरा ऊपर की ओर था, नए जमाने के चेहरे की तरह, समझदार, जिज्ञासु, लेकिन बीते हुए समय से अछूता। साइमन ने अचानक कहा, चलो बाहर चले। मुझे इन चारों से कुछ अजीब सा डर लगता है, खासकर उस वाले से जो ऊटी सी टोपी पहने है। शायद वो एमन है और वो दूसरा रामेसेस होगा, लेकिन तुम्हें इनमें क्या बुरा लगा? मुझे तो ये बहुत प्रभावशाली लगते हैं। इसीलिए तो कुछ तो अजीब है इनमें। चलो धूप में चलते हैं। लिनेट हंसी, लेकिन मान गई। वे मंदिर से बाहर निकले, जहां रेत गर्म और सुनहरी थी। लिनेट हंसने लगी। उनके पैरों के पास एक कतार में कुछ नुबियन लड़कों के कटे हुए सिर जैसे दिख रहे थे, जैसे किसी ने शरीर से अलग कर दिए हो, लेकिन वो सिर हिल रहे थे, आंखें घूम रही थी और होठों से एक अजीब मंत्र सुनाई दे रहा था। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। लिनेट हंस पड़ी। कितना अजीब है, ये करते कैसे हैं? क्या सच में इन्हें जमीन में बहुत नीचे गाड़ा हुआ है? साइमन ने कुछ सिक्के निकाले और मजाक में कहा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी एक्सपेंसिव। वहां खड़े 2 छोटे लड़कों ने सिक्के फुर्ती से उठाए। लिनेट और साइमन वहां से आगे बढ़ गए। अब उनका नाव पर लौटने का मन नहीं था और न ही किसी और जगह देखने का। वे चट्टान से पीठ दिखाकर बैठ गए और धूप में खुद को सेकने लगे। धूप कितनी प्यारी है, लिनेट ने सोचा। कितनी गर्म, कितनी सुरक्षित, कितना अच्छा लगता है खुश होना। कितना अच्छा लगता है कि मैं हूँ, लिनेट। उसकी आंखें बंद हो गई। वह आधी नींद, आधी जगी हुई थी। उसके विचार हवा में उड़ती रेत की तरह बह रहे थे। साइमन की आंखें खुली थी। उनमें भी संतोष था। कितना बेवकूफ था वो, जो पहली रात घबरा गया था। घबराने जैसा कुछ था ही नहीं। सब कुछ ठीक है। आखिरकार जैकी पर भरोसा किया जा सकता है। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। लोग दौड़ते हुए उसकी ओर आ रहे थे, हाथ हिलाते हुए, चिल्लाते हुए। साइमन एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाया, बस खाली नजर से देखता रहा। फिर वह झट से उठा और लिनेट को भी अपने साथ खींच लिया। एक पल भी देर होती तो शायद बहुत भारी पड़ता। एक बड़ी चट्टान,
ऊपर से लुढ़कते हुए उनके पास से तेजी से नीचे गिरी। अगर लिनेट वहीं बैठी रहती तो वह बिल्कुल चकनाचूर हो जाती। दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया था। वे एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। उसी समय हर्क्यूल पोयरो और टीम एल्टन दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। माफोई मैडम, बस बाल बाल बची आप, पोयरो ने गहरी सांस लेकर कहा। चारों ने स्वाभाविक रूप से ऊपर चट्टान की ओर देखा। वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऊपर एक पगडंडी थी। पोयरो को याद आया, जब वे पहले यहाँ आए थे तो कुछ स्थानीय लोग उस रास्ते पर चलते हुए दिखे थे। पोयरो ने पति पत्नी की ओर देखा। लिनेट अब भी चौंकी हुई और भ्रमित सी थी, लेकिन साइमन का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, गॉड डैम हर। फिर उसने जल्दी से टीम एल्टन की ओर देख लिया और चुप हो गया। टिम ने कहा, उफ, कितना करीब था ये। क्या किसी बेवकूफ ने वो चट्टान गिराई या वो अपने आप गिर गई? लिनेट बहुत ज्यादा पीली पड़ गई थी। उसने मुश्किल से कहा, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर गिराई। तुम्हें तो अंडे के छिलके की तरह कुचल सकती थी वो। क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है लिनेट? लिनेट ने 2 बार गला साफ किया, पर हल्के फुल्के मजाक का जवाब देने में उसे मुश्किल हो रही थी। मैडम, वापस नाव पर चलिए, पोयरो ने तुरंत कहा। आपको कुछ पीने के लिए लेना चाहिए। वे सब तेजी से नाव की ओर चलने लगे। साइमन अब भी गुस्से से भरा हुआ था। टीम हल्की फुल्की बातों से लिनेट का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा था और पोयरो गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही वे लोग नाव के पास पहुंचे, साइमन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। जैकलिन डे बेलफोर्ट अभी अभी किनारे पर आ रही थी। उसने नीली ड्रेस पहनी थी और इस सुबह कुछ कुछ बच्ची जैसी लग रही थी। गुड गॉड, साइमन ने धीरे से कहा, तो फिर ये सचमुच एक हादसा था। उसके चेहरे का गुस्सा उतर गया। अब उसमें सिर्फ राहत दिख रही थी, इतनी साफ कि जैकी ने भी कुछ महसूस कर लिया। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। माफ कीजिए, मैं थोड़ी लेट हो गई। उसने सबको हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और मंदिर की ओर बढ़ गई। साइमन ने पोयरो की बाह पकड़ ली। बाकी दोनों लोग आगे बढ़ चुके थे। हे ईश्वर, ये तो राहत की बात है। मुझे लगा, मैं समझा था। पोयरो ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, मुझे पता है तुमने क्या सोचा। लेकिन उसका चेहरा अभी भी गंभीर था और उसका ध्यान कहीं और था। पोयरो ने पलटकर ध्यान से देखा कि बाकी यात्री कहाँ थे। मिस वैन श्यूलर मिस बॉवर्स के सहारे धीरे धीरे लौट रही थी। थोड़ी दूर मिसेस एलर्टन और मिसेस ऑटोबॉर्न नुबियन बच्चों की नकली सिरों की कतार को देखकर हंस रही थी। बाकी लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पोयरो ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप साइमन के पीछे पीछे नाव की ओर बढ़ गए। अध्याय 11। मैडम, क्या आप मुझे ये समझा सकती है कि ये फे शब्द का मतलब क्या होता है? पोयरो ने पूछा। मिसेस एलर्टन थोड़ी चौंकी। वे और पोयरो धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे, उस चट्टान की ओर जो सेकंड कैटरैक्ट, दूसरा प्रपात को देखती थी। बाकी लोग ऊंटों पर चढ़कर ऊपर गए थे, लेकिन पोयरो को ऊंट की चाल किसी हद तक जहाज जैसी लगी, जो उन्हें पसंद नहीं आई। मिसेस एलर्टन ने उनकी सवारी को बेइज्जती भरा अनुभव कहकर मना कर दिया था। वे लोग वादी हल्फा एक रात पहले पहुंचे थे। सुबह 2 नावों में सबको सेकंड कैटरैक्ट ले जाया गया, सिवाय सिग्नोर रिचेटी के, जिन्होंने जिद की कि वे अकेले एक दूर सेमना जाना चाहते हैं। उन्होंने समझाया कि ये जगह आमहेमेट थर्ड के समय में नुबिया का प्रवेश द्वार थी और वहां एक शीला, जिसमें लिखा है कि मिस्र में प्रवेश करते समय निग्रो लोगों को कर कस्टम ड्यूटी देना होता है। सभी ने अपने अपने कारण देकर उन्हें रोकने की कोशिश की कि ये यात्रा जरूरी नहीं है, वहां कार नहीं जा सकती, कोई कार मिल ही नहीं सकती, अगर मिली भी तो बहुत महंगी होगी। लेकिन रिचेटी ने हर बात को नकारा। पहली को मजाक उड़ाया, दूसरी पर शक जताया, तीसरे पर कहा कि वे खुद कार ढूंढ लेंगे और चौथे के लिए उन्होंने अरबी में अच्छी खासी मोल भाव कर डाली। आखिरकार वे चुपचाप रवाना हो गए ताकि कोई और टूरिस्ट उनके पीछे पीछे न आ जाए। अब पोयरो के सवाल पर मिसेस एलर्टन ने सिर थोड़ा तिरछा किया और बोली, एक स्कॉटिश शब्द है, इसका मतलब होता है वो बहुत ज्यादा खुशी,
जो अक्सर किसी मुसीबत या हादसे से पहले आती है, जैसे कुछ अच्छा, बहुत अच्छा है, पर टिकने वाला नहीं। वो इस विचार को और समझाने लगी। पोयरो ध्यान से सुनते रहे। धन्यवाद मैडम, अब मैं समझ गया। यह अजीब है कि आपने ये शब्द कल ही कहा और थोड़ी देर बाद मैडम डॉयल की जान बाल बाल बची। मिसेस एलर्टन सिहर उठी। वो हादसा बहुत ही खतरनाक था। क्या आपको लगता है कि कोई छोटा काला लड़का यूं ही मजे में चट्टान लुढ़का गया होगा? बच्चों की ऐसी हरकतें तो हर जगह होती है, शायद जानबूझकर नहीं की। पॉयरो ने कंधे उचका दिए। संभव है मैडम। फिर उन्होंने विषय बदल दिया और मेजारको के बारे में बात करने लगे, जैसे वह वहां जाने की योजना बना रहे हो। मिसेस एलर्टन को अब पॉयरो बहुत पसंद आने लगे थे, शायद थोड़ा टीम के उलट स्वभाव के कारण। टीम हमेशा कोशिश करता कि वो पॉयरो से ज्यादा घुले मिले नहीं। उसने तो मिसेस एलर्टन से सीधा कह दिया था कि पॉयरो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन मिसेस एलर्टन ऐसा नहीं मानती थी। शायद उनके विदेशी कपड़े टिम को चिढ़ाते थे, लेकिन उन्हें पॉयरो एक समझदार, रोचक और संवेदनशील इंसान लगे। बिना सोचे उन्होंने उनसे अपने जोआना साउथवुड को लेकर चिढ़ की बात कह दी। बात करने में उन्हें हल्का महसूस हुआ, और क्यों न कहे, पॉयरो जोआना को जानते तो नहीं थे, शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। उसी समय टिम और रोजली ऑटोबॉर्न भी बात कर रहे थे। टिम मजाक में अपनी किस्मत को कोस रहा था। न ही उसकी सेहत बहुत खराब थी, न इतनी अच्छी कि वह अपनी पसंद की जिंदगी जी पाता। एकदम उबाऊ, थकी हुई जिंदगी है मेरी, उसने निराश होकर कहा। रोजली अचानक बोली, तुम्हारे पास वो चीज है जो बहुत से लोग चाहते होंगे। क्या? तुम्हारी माँ। टिम चौंका, लेकिन खुश भी हुआ। माँ? हाँ, वो तो सचमुच खास है। अच्छा लगा कि तुमने ये पहचाना। वो बहुत अच्छी है। इतनी शांति उनके चेहरे पर होती है, जैसे कोई दुख उन्हें छू भी नहीं सकता। फिर भी वो हर चीज को मजाक में बदल देती है। रोजली भावुक हो रही थी और थोड़ा हकलाने लगी थी। टिम को लड़की के लिए अचानक एक गर्माहट महसूस हुई। काश वह भी ऐसा कुछ कह पाता, लेकिन अफसोस, उसकी माँ मिसेस ऑटोबॉर्न को वह दुनिया का सबसे बड़ा खतरा मानता था। इसलिए जवाब न दे पाने पर वह असहज हो गया। उधर मिस वैन शूलर नाव में बैठी रही। उन पर या पैदल चढ़ाई करना उनके लिए जोखिम भरा था। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, माफ कीजिए कि मुझे आपको रोकना पड़ा मिस बॉवर्स। मैं चाहती थी कि आप ऊपर जाए और कॉर्नेलिया नीचे रहे, लेकिन लड़कियां बहुत स्वार्थी होती है। वो बिना पूछे ही चली गई और मैंने देखा वो उस बदतमीज लड़के फर्ग्यूसन से बात कर रही थी। कॉर्नेलिया ने मुझे बहुत निराश किया है। उसमें कोई सोशल सेंस नहीं है। मिस बॉवर्स ने सामान्य लहजे में जवाब दिया। कोई बात नहीं मिस वैनशूलर, ऊपर चढ़ना वैसे भी मुश्किल होता है और ऊँटों की काठी मुझे ठीक नहीं लगती। शायद उनमें पिस्सू भी हो। उन्होंने चश्मा ठीक किया, आंखें मिचमिचाई और पहाड़ी से नीचे आते लोगों को देखा। मिस रॉबसन अब उस लड़के के साथ नहीं है, अब वो डॉक्टर बेसनर के साथ है। मिस वैनशूलर ने गुस्से में गुनगुनाया। जब से मिस वैनशूलर को पता चला था कि डॉक्टर बेसनर का चेकोस्लोवाकिया में एक बड़ा क्लिनिक है और वो एक मशहूर यूरोपियन डॉक्टर है, तब से वह उनके प्रति ज्यादा विनम्र हो गई थी। वैसे भी इस सफर के दौरान कभी उन्हें उनके डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती थी। जब सब लोग वापस करनाक नाव पर लौटे तो लिनेट चौंक कर चिल्लाई, मेरे लिए एक टेलीग्राम है। उसने उसे बोर्ड में झपट कर फाड़ लिया। अरे, मैं समझ नहीं पाई। आलू, चुकंदर, इसका क्या मतलब है साइमन? साइमन अभी उसके कंधे से झांक ही रहा था कि एक गुस्सैल आवाज आई, माफ कीजिए, ये टेलीग्राम मेरा है। और सिग्नल रिचेटी ने उसे झटके से उसके हाथ से छीन लिया और गुस्से से उसे घूरा। लिनेट कुछ पल के लिए हैरान रह गई, फिर लिफाफे को पलट कर देखा। ओ साइमन, मैं कितनी मूर्ख हूँ। ये रिचेटी था, रिजवे नहीं। वैसे भी अब शादी के बाद तो मेरा नाम बदल चुका है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। वो तेजी से नाव के पिछले हिस्से की ओर गई। माफ कीजिए सिग्नोर रिचेटी, देखिए, मेरा शादी से पहले नाम रिजवे था और शादी हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तो बस। उसने बात अधूरी छोड़ी
और हंसते हुए उसका चेहरा चमक उठा, जैसे एक नई दुल्हन से गलती हो गई हो और वह सामने वाले से मुस्कान की उम्मीद कर रही हो। लेकिन रिचर्डी बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। जैसे रानी विक्टोरिया गुस्से में हो, वैसा चेहरा बना लिया। नाम ध्यान से पढ़ना चाहिए, इस तरह की लापरवाही माफ नहीं की जा सकती। लिनेट ने होठ काटे और उसका चेहरा लाल हो गया। वो इस तरह के जवाब की आदी नहीं थी। उसने मुड़कर साइमन से गुस्से में कहा, ये इटालियन लोग सच में बेहद नाटक करते हैं। कोई बात नहीं डार्लिंग, चलो उस बड़े दांत वाले मगरमच्छ को देखने चलते हैं जो तुम्हें अच्छा लगा था। वे दोनों किनारे की ओर चले गए। पॉयरो जो उन्हें देख रहे थे, उन्होंने अचानक किसी की सांस की तेज आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि जैकलिन डे बेलफोर्ड पास खड़ी है। रेलिंग पर उसके हाथ जकड़े हुए थे। उसका चेहरा देखकर पॉयरो चौंक गए। अब वहां न हंसी थी न शरारत। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से वह किसी जलती हुई आग में झुलस रही हो। उन्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं रही, उसने तेजी से नीची आवाज में कहा। वो अब मुझसे दूर निकल चुके हैं। मैं अब उन्हें छू भी नहीं सकती। मेरी मौजूदगी मायने नहीं रखती। अब मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। उसके हाथ कांप रहे थे। मैडमोजेल, पॉयरो कुछ कहने ही वाले थे कि जैकलिन बोल पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है, चेतावनियों के लिए भी। अब सही थे, मुझे इस सफर पर नहीं आना चाहिए था। आपने क्या कहा था? आत्मा की यात्रा? अब मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे आगे ही जाना होगा और मैं जाऊंगी। वो खुश नहीं रहेंगे साथ में, कभी नहीं। मैं उसे मार डालूंगी अगर जरूरत पड़ी। वो अचानक मुड़ी और चली गई। पॉयरो उसे जाते हुए देख ही रहे थे कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आपकी लेडी फ्रेंड कुछ परेशान लगती है मुझे पॉयरो। पॉयरो मुड़े और हैरानी से देखा। एक पुराने परिचित खड़े थे। कर्नल रेस। लंबा सांवला आदमी मुस्कुराया। थोड़ा चौंक गए, है ना? पॉयरो की उनसे मुलाकात लंदन में 1 साल पहले हुई थी, एक अजीब सी डिनर पार्टी में, जो अंत में एक आदमी की मौत के साथ खत्म हुई थी। उन्हें पता था कि कर्नल रेस अक्सर चुपचाप गुप्त मिशनों में शामिल होते थे, अक्सर ऐसे जगहों पर जहां ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा हो सकता है। तो आप वादी हल्फा में हैं? पॉयरो ने सोचा। मैं इस नाव पर हूँ, रेस ने कहा। आपका मतलब? मैं आप लोगों के साथ ही वापस शेलाल तक का सफर करूंगा। पॉयरो की बोही उठी। ये तो दिलचस्प है। चलिए कुछ पीते हैं। वे दोनों ऑब्जर्वेशन सलून में चले गए, जो अभी खाली था। पॉयरो ने रेस के लिए विस्की और अपने लिए शक्कर भरा डबल ऑरेंजेड मंगवाया। तो आप हमारे साथ वापसी की यात्रा पर हैं, पॉयरो ने कहा। लेकिन आप तो सरकारी जहाज से जल्दी पहुंच सकते थे, जो दिन रात चलता है। रेस मुस्कुराया। आप हमेशा सही निशाने पर होते हैं मोज़े पॉयरो। तो बात यात्रियों की है, एक यात्री की। कौन? पॉयरो ने छत की ओर देखकर पूछा। मुझे खुद नहीं पता, रेस ने दुखी स्वर में कहा। पॉयरो रुचि से देखने लगे। रेस बोला, आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। यहाँ हमें काफी दिक्कतें हुई है। असली खतरा वो लोग नहीं है जो सामने से दंगे करवाते हैं, बल्कि वो है जो पीछे रहकर चुपचाप बारूद में आग जलाते हैं। ऐसे 3 लोग थे। एक मर चुका है, एक जेल में है और तीसरे की मुझे तलाश है। उसने 5-6 हत्याएं की है, ठंडे दिमाग से। वह एक बहुत चालाक भाड़े का उकसाने वाला है और वो इस नाव पर है। मुझे एक चिट्ठी में उसका जिक्र मिला, जो हमारे हाथ लगी। कोड में लिखा था, एक्स करनाक की यात्रा पर 7 से 13 तारीख तक रहेगा, पर यह नहीं बताया गया कि वह किस नाम से यात्रा करेगा। क्या आपके पास उसका कोई हुलिया है? नहीं, रेस ने कहा। वो अमेरिकी, आयरिश और फ्रेंच मूल का है। थोड़ा मिक्स्ड ब्लड है। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। आपके पास कोई आइडिया है? आइडिया तो है, पॉयरो ने सोचते हुए कहा, लेकिन सिर्फ आइडिया से कुछ साबित नहीं होता। उन दोनों के बीच इतनी अच्छी समझ थी कि रेस ने और कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि पॉयरो तब तक कुछ नहीं कहता जब तक वह पूरी तरह से यकीन में न हो। पॉयरो ने अपनी नाक पर हाथ रगड़ा और उदासी से कहा, इस नाव पर कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे बहुत बेचैन करता है। रेस ने पॉयरो की ओर सवालिया निगाहों से देखा। सोचिए,
पॉयरो ने कहा, कोई व्यक्ति ए है जिसने बी के साथ बहुत बड़ा गलत किया है। अब बी बदला लेना चाहता है। बी ने धमकियां भी दी है। और ए और बी दोनों इस नाव पर है? पॉयरो ने सिर हिलाया। जी हाँ। और बी मेरी समझ से एक औरत है। सही कहा। रेस ने सिगरेट जलाई और कहा, चिंता मत कीजिए। जो लोग खुलकर बोलते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, वो अक्सर कुछ नहीं करते, और खासकर औरतों के मामले में, है ना? पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बात सही है, लेकिन उनके चेहरे पर अभी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। और कुछ? रेस ने पूछा। हाँ एक और बात है, पॉयरो ने कहा, कल उस व्यक्ति ए की जान पर बहुत बारीकी से खतरा आया। ऐसा हादसा जो दिखने में एक्सीडेंट लगता है, लेकिन बहुत ही सुविधाजनक एक्सीडेंट। बी ने किया होगा? नहीं, यही तो बात है। बी का उससे कोई लेना देना नहीं हो सकता। तो फिर वो बस एक हादसा रहा होगा। शायद, लेकिन मुझे ऐसे हादसे पसंद नहीं। क्या आपको पूरा यकीन है कि बी का कोई हाथ नहीं हो सकता था? बिल्कुल यकीन है। अच्छा, तो फिर कभी कभी संयोग भी होते हैं। वैसे ये ए है कौन? कोई नापसंद इंसान? इसके उलट, ये एक बेहद प्यारी, अमीर और खूबसूरत जवान लड़की है। रेस मुस्कुराया। लगता है जैसे किसी नॉवेल की कहानी हो सकता है, पॉयरो ने गंभीरता से कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे चैन नहीं पड़ता है। अगर मैं सही हूँ, और वैसे मैं अक्सर सही ही होता हूँ। रेस इस परिचित दावे पर हल्के से मुस्कुराया। तो मामला वाकई चिंता का है। और अब आपने एक और समस्या जोड़ दी है। आप कहते हैं कि इस नाव पर एक आदमी है जो खून करता है। वो आम तौर पर खूबसूरत जवान लड़कियों को नहीं मारता। पॉयरो ने सिर हिलाया, असंतोष के साथ। मुझे डर है मेरे दोस्त, उन्होंने कहा। मुझे डर लग रहा है। आज मैंने उस लड़की, मैडम डॉयल को सलाह दी कि वो अपने पति के साथ खार्तूम चली जाए, इस नाव से आगे सफर न करे, लेकिन वो नहीं मानी। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हम बिना किसी दुर्घटना के शेलाल पहुंच जाएं। आप कुछ ज्यादा ही निराश हो रहे हैं। पॉयरो ने फिर से सिर हिलाया। मुझे डर है, उन्होंने सादे लहजे में कहा। हाँ, मैं हर्क्यूल पॉयरो डर रहा हूँ। अध्याय 12। कॉर्नेलिया रॉबसन अबू सिम्बल के मंदिर के अंदर खड़ी थी। यह अगले दिन की शाम थी, बहुत गर्म और बिल्कुल शांत। करनाक नाव फिर से अबू सिम्बल पर रुकी थी, ताकि लोग मंदिर को इस बार कृत्रिम रोशनी में देख सके। इसका असर काफी अलग था, और कॉर्नेलिया ने यह बात मिस्टर फर्ग्यूसन से हैरानी से कही, जो उसके साथ खड़े थे। वाह, अब तो सब कुछ पहले से ज्यादा साफ दिख रहा है, वो बोली। राजा जिन दुश्मनों के सिर काट रहा है, वो सब तो बिल्कुल सामने आ गए हैं, और वो जो किले जैसी चीज है, वो पहले तो मुझे दिखी ही नहीं थी। काश डॉक्टर बेसनर यहाँ होते, वो बताते कि ये क्या है। तुम उस बूढ़े बेवकूफ को कैसे झेल लेती हो, ये मेरी समझ से बाहर है, फर्ग्यूसन ने उदासी से कहा। क्यों, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। घमंडी और बोर करने वाला बूढ़ा है। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, कॉर्नेलिया ने संजीदगी से कहा। जैसे ही वो दोनों मंदिर से बाहर निकलकर चांदनी में आए, फर्ग्यूसन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मोटे बूढ़ों की बोरियत क्यों झेलती हो, और उस तीखी जुबान वाली बूढ़ी औरत की डांट फटकार क्यों सुनती हो? अरे मिस्टर फर्ग्यूसन, तुम्हें कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम भी उतनी ही अच्छी हो जितनी वो है? नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ, कॉर्नेलिया ने सच्ची भावना से कहा। तुम सिर्फ इतना कहना चाहती हो कि तुम उतनी अमीर नहीं हो। नहीं, बात ये नहीं है। कजिन मेरी बहुत पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी, फर्ग्यूसन ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। ये शब्द सुनकर तो मुझे चिढ़ होती है। कॉर्नेलिया ने डरते हुए उसकी ओर देखा। वो तुम्हें मुझसे बात करते नहीं देखना चाहती, है ना? फर्ग्यूसन ने पूछा। कॉर्नेलिया थोड़ा शर्मिंदा हो गई, चेहरा फेर लिया। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि मैं उसके सोशल लेवल का नहीं हूँ। क्या इससे तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैं चाहती हूँ कि आप इतना गुस्सा न हो, कॉर्नेलिया ने धीरे से कहा।
तुम अमेरिका से हो, क्या तुम नहीं मानती कि सब लोग बराबर पैदा होते हैं? नहीं मानती, कॉर्नेलिया ने शांत लेकिन यकीन के साथ कहा। डियर कॉर्नेलिया, ये तो तुम्हारे संविधान का हिस्सा है। कजिन मेरी कहती है कि पॉलिटिशियन लोग सज्जन नहीं होते, कॉर्नेलिया बोली। और वैसे भी लोग बराबर नहीं होते, ये कोई तर्क की बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ खास सुंदर नहीं हूँ और पहले मुझे इसका बुरा भी लगता था, लेकिन अब नहीं। मुझे भी मिसेस डॉयल की तरह सुंदर और आकर्षक होना अच्छा लगता, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ और अब मैंने मान लिया है। मिसेस डॉयल, फर्ग्यूसन ने हिकारत से कहा, वो औरत तो ऐसी है जिसे उदाहरण के तौर पर गोली मार देनी चाहिए। कॉर्नेलिया ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसने दयालुता से कहा। मेरे पास एक खास तरह की पेप्सिन है जो कजिन मेरी ने एक बार ली थी। क्या आप ट्राई करना चाहोगे? तुम तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो, फर्ग्यूसन बोला और गुस्से में वहां से चला गया। कॉर्नेलिया धीरे धीरे नाव की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो गैंगवे पर थी, फर्ग्यूसन फिर उसके पास आ गया। तुम इस नाव की सबसे अच्छी इंसान हो, उसने कहा, और ये बात याद रखना। कॉर्नेलिया खुशी से शर्माई और ऑब्जर्वेशन सैलून की ओर चली गई। अंदर मिस वैन शूलर डॉक्टर बेसनर से बात कर रही थी, किसी शाही मरीज के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ज्यादा देर नहीं हो गई कजिन मेरी, कॉर्नेलिया ने थोड़े अपराध बोध के साथ कहा। घड़ी देखते हुए बूढ़ी औरत ने झल्ला कर कहा, तुमने कोई जल्दी तो नहीं की मेरी बच्ची? और मेरी वेलवेट स्टोल कहाँ है? कॉर्नेलिया ने इधर उधर देखा। क्या मैं कैबिन में जाकर देखूं कजिन मेरी? बिल्कुल नहीं, मैंने इसे डिनर के बाद यही पहना था और तब से मैं यही हूँ। वो इस कुर्सी पर रखा था। कॉर्नेलिया ने धीरे धीरे इधर उधर देखा। कहीं दिख नहीं रहा कजिन मेरी। बकवास, मिस वैन शूलर ने कहा, ध्यान से देखो। उसने ऐसा आदेश दिया जैसे किसी कुत्ते को दिया जाता हो, और कॉर्नेलिया ने वैसा ही किया। पास ही बैठे शांत मिस्टर फैंथ्रॉफ उठे और मदद करने लगे, लेकिन स्टोल कहीं नहीं मिला। दिन बहुत गर्म और थका देने वाला था, इसलिए ज्यादातर लोग मंदिर देखने के बाद जल्दी आराम करने चले गए थे। डॉयल दंपति ब्रिज खेल रहे थे, पेनिंगटन और रेस के साथ। सलून में बस एक और शख्स था, हर्क्यूल पॉयरो, जो एक छोटे से टेबल पर बैठे जमाई ले रहे थे। मिस वैन शूलर, कॉर्नेलिया और मिस पॉवर्स के साथ शाही अंदाज में अपने कमरे की ओर जा रही थी। जब वो पॉयरो के पास पहुंची तो वो तुरंत खड़े हो गए, अपनी बड़ी सी जमाई रोकते हुए। अब जाकर पता चला कि आप कौन है मोज़े पॉयरो, मिस वैन शूलर ने कहा। मैंने आपके बारे में अपने पुराने दोस्त रूफस वैन एल्डिन से सुना है। किसी दिन मुझे अपने केसों के बारे में जरूर बताएं। पॉयरो ने नींद भरी आंखों से हल्की मुस्कान के साथ गहराई से झुककर अभिवादन किया। मिस वैन शूलर ने उन्हें एक रॉयल अंदाज में सिर हिलाकर देखा और आगे बढ़ गई। पॉयरो ने फिर एक बड़ी सी जमाई ली। उन्हें बहुत नींद आ रही थी और उनका दिमाग सुस्त और भारी लग रहा था। उनकी आंखें मुश्किल से खुली थी। उन्होंने ब्रिज खेल रहे लोगों की ओर देखा, जो खेल में पूरी तरह डूबे थे। फिर यंग फैंथ्रॉफ की तरफ देखा, जो किताब पढ़ने में मग्न था। इन दोनों को छोड़कर सलून में और कोई नहीं था। वो धीरे से स्विंग डोर से बाहर डेक पर चले गए। तभी जैकलिन डे बेलफोर्ट तेजी से चलती हुई वहां आ गई और लगभग पॉयरो से टकरा गई। माफ कीजिए मैडमोज़ेल, पॉयरो ने कहा। आप तो बहुत नींद में लग रहे हैं मुझे पॉयरो, जैकलिन ने कहा। बिल्कुल सही कह रही है, पॉयरो ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं नींद से घिरा हुआ हूँ, मुश्किल से आंखें खुली रख पा रहा हूँ। आज का दिन बहुत भारी और थकाने वाला रहा। हाँ, उसने कहा और कुछ पल चुप रही। आज का दिन कुछ ऐसा था, जब चीजें टूटती है, जब सब बिखर जाता है, जब इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। वो पॉयरो को नहीं, बल्कि रेतीले किनारे की ओर देख रही थी। उसके हाथ जकड़े हुए थे, जैसे किसी अंदरूनी तनाव में हो। फिर अचानक वह तनाव ढीला पड़ गया। गुड नाइट मोज़े पॉयरो, उसने कहा। गुड नाइट मैडमोज़ेल, पॉयरो ने जवाब दिया। उसकी आंखें एक पल के लिए पॉयरो की आंखों से मिली, बस एक पल के लिए। अगले दिन इस पल को याद करते हुए पॉयरो ने सोचा कि उस नजर में शायद कोई अपील था।
اور یہی نظر بعد میں انہیں یاد رہ گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے کیبن کی اور بڑھ گئے اور جیکلین سلون کی اور چلی گئی۔ کارنیلیا نے مس وین شیولر کی ہر ضرورت اور کلپنا کا دھیان رکھنے کے بعد کچھ کڑھائی کا سامان اٹھایا اور سلون میں واپس آ گئی۔ اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، الٹا وہ پوری طرح جاگی ہوئی تھی اور تھوڑی اتساہت بھی لگ رہی تھی۔ برج کھیلنے والے ابھی بھی کھیل میں لگے تھے۔ ایک اور کرسی پر شانت سوبھاؤ والے فینتراؤ ابھی بھی کتاب پڑھ رہے تھے۔ کارنیلیا بیٹھ کر اپنی کڑھائی کرنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور جیکلین ڈے بیلفورٹ اندر آئی۔ وہ کچھ پل دروازے پر کھڑی رہی، سر پیچھے جھکائے ہوئے۔ پھر اس نے ایک بیل دبایا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کارنیلیا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باہر گئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، چاندنی میں مندر دیکھنا بہت سندر لگا، کارنیلیا نے کہا۔ جیکلین نے سر ہلایا۔ ہاں، بہت سندر رات ہے، ایک دم ہنی مون جیسی رات۔ اس کی نگاہیں برج ٹیبل کی اور گئی اور کچھ پل کے لیے لینٹ ڈوئل پر ٹھہر گئی۔ بیل کی آواز پر ایک لڑکا آیا۔ جیکلین نے ڈبل جین منگوایا۔ جیسے ہی اس نے آرڈر دیا، سائمن ڈوئل نے اس کی طرف ایک تیز نظر ڈالی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی چنتا کی لکیر دکھی۔ اس کی پتنی لینٹ نے کہا، سائمن، ہم تمہارے کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیکلین خود سے ایک دھیما گیت گنگنانے لگی۔ جب ڈرنک آیا تو اس نے گلاس اٹھایا اور کہا، ویل ہیئر کمز ٹو کرائم، اور پورا گلاس ایک ہی بار میں خالی کر دیا۔ پھر دوسرا آرڈر کیا۔ سائمن نے پھر سے اس کی اور دیکھا۔ اب وہ کھیل میں تھوڑا انمنا ہو گیا تھا۔ اس کا پارٹنر پیننگٹن اس سے ناراض ہو گیا۔ جیکلین پھر گنگنانے لگی، پہلے دھیرے پھر تیز آواز میں، He was her man and he did her wrong. Sorry, سائمن نے پیننگٹن سے کہا، غلطی سے تمہارا اشارہ مس کر دیا۔ اب یہ لوگ ربر جیت گئے۔ لینٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب سونے جا رہی ہوں۔ اب سونے کا ٹائم آ گیا ہے، کرنل ریس نے کہا۔ میں بھی چل رہا ہوں، پیننگٹن نے کہا۔ تم آ رہے ہو سائمن؟ ابھی نہیں، میں ایک ڈرنک اور لوں گا، سائمن نے دھیرے سے کہا۔ لینٹ نے سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ ریس اور پھر پیننگٹن بھی اس کے پیچھے نکل گئے۔ کارنیلیا نے اپنی کڑھائی سمیٹنی شروع کی۔ سو مت جائیے مس رابسن، جیکلین نے کہا، پلیز مت جاؤ، آج رات مجھے جاگنے کا من ہے، میرا ساتھ دو۔ کارنیلیا پھر سے بیٹھ گئی۔ ہم لڑکیوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، جیکلین نے کہا۔ وہ زور سے ہنسی، ایک اونچی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ دوسرا ڈرنک آیا۔ آپ کچھ لیں گی؟ تم کچھ لوگی؟ جیکلین نے پوچھا۔ نہیں بہت دھنیہ واد، کارنیلیا نے کہا۔ جیکلین نے اپنی کرسی پیچھے جھکائی اور اب زور زور سے گنگنانے لگی، He was her man and he did her wrong. مسٹر فینتراف نے یوروپ فرام ودن کتاب کا پیج پلٹا۔ سائمن ڈوئل نے ایک پتریکا اٹھائی۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے سو جانا چاہیے، کارنیلیا نے کہا، کافی دیر ہو چکی ہے۔ تم ابھی نہیں سو سکتی، جیکلین نے کہا، میں منع کرتی ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ اچھا، میں نہیں جانتی، زیادہ کچھ بتانے لائق نہیں ہے، کارنیلیا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ گھر پر رہی ہوں، زیادہ باہر نہیں گئی۔ یہ میری پہلی یوروپ یاترا ہے اور مجھے ہر ایک پل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جیکلین ہنسی، تم تو بڑی خوش مزاج قسم کی انسان ہو، ہے نا؟ قسم سے، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری جگہ ہوتی۔ اوہ، کیا واقعی؟ کارنیلیا تھوڑا گھبرا گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیکلین کچھ زیادہ پی چکی ہے۔ یہ اس کے لیے نیا انوبھو نہیں تھا۔ پروہیبیٹیشن کے دورے میں اس نے بہت سے نشے میں لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن اس بار کچھ اور تھا۔ جیکلین اس سے بات کر رہی تھی، اسے دیکھ رہی تھی، لیکن کارنیلیا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ لیکن کمرے میں تو بس دو ہی اور لوگ تھے، مسٹر فینتراف اور مسٹر ڈوئل۔ فینتراف اپنی کتاب میں کھوئے ہوئے تھے۔ ڈوئل کا چہرہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کسی چیز کو چپ چاپ دھیان سے دیکھ رہا ہو۔ تمہارے بارے میں سب کچھ بتاؤ، جیکلین نے پھر کہا۔ ہمیشہ دوسروں کی بات سننے کی عادی کارنیلیا نے کوشش کی کہ کچھ بتانے کی۔ وہ تھوڑا ڈیٹیل میں بولنے لگی۔
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताती गई जो ज्यादा जरूरी नहीं थी। उसे बोलने की आदत नहीं थी, उसका रोल हमेशा सुनने वाला ही रहा था। फिर भी मिस डे बेलफोर्ड जैसे सुनना चाहती थी। जब कॉर्नेलिया रुकने लगी तो जैकलिन ने तुरंत उसे उकसाया, बोलती रहो और बताओ। तो कॉर्नेलिया फिर बोलती रही, माँ की तबीयत बहुत नाजुक है, कुछ दिन तो वो सिर्फ सीरियल सिखाती है। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि जो भी वह कह रही है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। फिर भी जैकलिन की दिलचस्पी देखकर उसे थोड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन क्या वो सच में सुन रही थी या किसी और चीज की प्रतीक्षा कर रही थी? वो कॉर्नेलिया को तो देख रही थी, लेकिन जैसे उसकी निगाहों के पीछे कोई और बैठा हो। और हाँ, हमें बहुत अच्छी आर्ट क्लासेस मिलती है और पिछले विंटर में मैंने एक कोर्स लिया था। कितनी देर हो गई है? बहुत देर तो नहीं हो गई, वो बोले जा रही थी। काश अब कुछ तो हो जाए। और जैसे ही उसने सोचा, कुछ हो गया, बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से। बेल बजाओ साइमन, जैकलिन ने सिर घुमाकर कहा। मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। साइमन डॉयल ने मैगजीन से नजर हटाई और शांत स्वर में कहा, सभी स्टीवर्ड सो चुके हैं, आधी रात बीत चुकी है। मैंने कहा मुझे एक और ड्रिंक चाहिए, जैकलिन ने दोहराया। तुम काफी पी चुकी हो जैकी, साइमन ने सख्ती से कहा। वो तेजी से उसकी ओर घूमी। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं है। साइमन ने कंधे उचका दिए। बिल्कुल नहीं। वो उसे कुछ देर देखती रही, फिर बोली, क्या हुआ साइमन, डर रहे हो? साइमन ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से मैगजीन उठाकर फिर से पढ़ने की एक्टिंग की। कॉर्नेलिया बुदबुदाई, ओह, इतनी देर हो गई, मुझे तो अब। वो उठने की कोशिश में थिम्बल गिरा बैठी। मत जाओ सोने, जैकलिन ने कहा। मुझे दूसरी औरत का साथ चाहिए, जो मेरे साथ हो। वो फिर जोर से हंसी। जानती हो साइमन क्यों डर रहा है? उसे लगता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुना दूंगी। सच में? कॉर्नेलिया को बहुत अजीब सा लग रहा था। वो शर्मिंदा भी थी और थोड़ा रोमांचित भी। साइमन डॉयल का चेहरा तो काला पड़ गया था। हाँ, ये बहुत दुखद कहानी है, जैकलिन ने कहा। उसका आवाज धीमा और ताना मारने जैसा था। उसने मुझे बहुत बुरा ट्रीट किया, है ना साइमन? जाओ सो जाओ जैकी, साइमन ने गुस्से से कहा। तुम नशे में हो। अगर तुम्हें शर्म आ रही है डियर साइमन, तो बेहतर होगा तुम इस कमरे से निकल जाओ, जैकलिन ने कहा। साइमन ने उसकी ओर देखा। उसके हाथ में पकड़ी मैगजीन हल्के से कांप रही थी। फिर भी वो साफ बोला, मैं यही रहूंगा। कॉर्नेलिया फिर बोली, मुझे तो सच में अब बहुत देर हो गई है। तुम नहीं जा सकती, जैकलिन ने तेजी से कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कॉर्नेलिया को कुर्सी में बैठा लिया। तुम यही रहोगी और सुनोगी जो मैं कहने वाली हूँ। जैकी, साइमन ने तेज स्वर में कहा, तुम खुद का मजाक बना रही हो। ईश्वर के लिए, जाओ सोने। जैकलिन अचानक सीधी बैठ गई और उसके मुंह से जोर से फुसफुसाते हुए शब्द निकलने लगे। तुम सीन से डरते हो, है ना? क्योंकि तुम अंग्रेज हो, बहुत शांत और सलीके वाले। तुम्हें लगता है मैं ठीक से बर्ताव करूं, है ना? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साइमन। तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं बोलने वाली हूँ बहुत कुछ। जिम फैंथ्रॉप ने चुपचाप अपनी किताब बंद की, जमाई ली, घड़ी देखी और उठकर बाहर चला गया, बहुत अंग्रेजी तरीके से, लेकिन बिल्कुल बेअसर। जैकलिन कुर्सी से घूमकर साइमन की ओर घूरने लगी। तुम बेवकूफ हो साइमन। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करके बच जाओगे? साइमन ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। वो बिल्कुल शांत बैठा रहा। शायद सोच रहा था कि अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो जैकलिन खुद ही चुप हो जाएगी। जैकलिन की आवाज अब भारी और लड़खड़ाती हुई हो गई थी। कॉर्नेलिया, जिसने कभी इस तरह की खुले भावों की बात नहीं देखी थी, उसे जैसे कुछ खींच रहा था। मैंने कहा था, जैकलिन बोली, कि मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम किसी और औरत के पास गए। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही थी? नहीं, मैं तो बस इंतजार कर रही थी। तुम मेरे हो, सुन रहे हो, तुम मेरे हो। अभी साइमन चुप रहा। जैकलिन ने कुछ पल अपनी गोद में टटोला,
फिर वो झुकी और अचानक उसका हाथ उठा। कुछ चमकता हुआ उसके हाथ में था। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, एक कुत्ते की तरह, ऐसे गंदे कुत्ते को मारते हैं। अब आखिरकार साइमन ने हरकत की। वो झटके से खड़ा हुआ, लेकिन उसी पल जैकलीन ने ट्रिगर दबा दिया। साइमन मुड़ते हुए गिरा, एक कुर्सी पर झुकता हुआ। कॉर्नेलिया चीखी और दौड़कर दरवाजे की ओर भागी। जिम फैंथ्रोफ बाहर डेक पर रेलिंग के पास खड़ा था। कॉर्नेलिया ने पुकारा, मिस्टर फैंथ्रोफ, मिस्टर फैंथ्रोफ। वो दौड़ कर आया और कॉर्नेलिया ने घबरा कर उसे पकड़ लिया। उसने उसे गोली मार दी, ओह उसने उसे गोली मार दी। साइमन वही पड़ा था जैसा गिरा था, आधा कुर्सी पर, आधा जमीन पर। जैकलीन जैसे पत्थर बन गई थी। वो कांप रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और डर से भरी हुई थी, और वो देख रही थी उस लाल धब्बे को जो धीरे धीरे साइमन की पैंट पर नीचे घुटने के पास फैलता जा रहा था, जहां वो घाव को रुमाल से दबाए हुए था। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। ओह ईश्वर, मेरा ये मतलब नहीं था, जैकलीन ने हकलाते हुए कहा। उसके कांपते हाथों से पिस्तौल गिर गई और जमीन पर आवाज करते हुए लुढ़क गई। उसने अपने पैर से उसे दूर धकेल दिया और वह एक सोफे के नीचे चली गई। साइमन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, फैंथ्रोफ, ईश्वर के लिए, कोई आ रहा है। कह दो कि सब ठीक है, एक एक्सीडेंट था। कुछ भी कहो, इस बात का कोई स्कैंडल नहीं होना चाहिए। फैंथ्रोफ ने तुरंत बात समझ ली और दरवाजे की ओर घूमा, जहां एक चौंका हुआ नौकर, नुबियन लड़का खड़ा था। उसने कहा, सब ठीक है, सब ठीक है, बस मजाक चल रहा था। काले चेहरे पर पहले संदेह था, फिर वह आश्वस्त हो गया। वह मुस्कुराया और चला गया। फैंथ्रोफ ने पलट कर कहा, अब ठीक है, शायद किसी और ने कुछ नहीं सुना, सिर्फ कॉक खुलने जैसी आवाज थी। अब अगला काम। लेकिन तभी जैकलीन अचानक जोर जोर से रोने लगी, लगभग हिचकी लेकर। ओह ईश्वर, काश मैं मर जाती। मैं खुद को मार लूंगी, मर जाना ही बेहतर है। मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। कॉर्नेलिया तुरंत उसके पास दौड़ी। शांत हो जाओ डियर, शांत हो जाओ। साइमन पसीने से भीगा, दर्द से तड़पते हुए जोर देकर बोला, उसे यहाँ से ले जाओ, ईश्वर के लिए। उसे उसके कैबिन में ले जाओ फैंथ्रोफ। देखिए मिस रॉबसन, अपनी वो हॉस्पिटल वाली नर्स को बुला लाइए। उसने दोनों को मदद के लिए देखा। उसे अकेला मत छोड़ना, निश्चित करना कि वो नर्स की निगरानी में है, और फिर डॉक्टर बेसनर को बुलाकर यहाँ लाओ। मेरी पत्नी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। फैंथ्रोफ ने समझते हुए सिर हिलाया। शांत स्वभाव वाला ये युवक अब पूरी तरह शांत और सक्षम नजर आ रहा था। कॉर्नेलिया और फैंथ्रोफ ने मिलकर रोती और जूझती जैकलीन को लॉन से बाहर निकालकर उसके कैबिन तक पहुंचाया, लेकिन वहां उसे संभालना और मुश्किल हो गया। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और भी जोर जोर से रोने लगी। मैं खुद को डुबा दूंगी, मैं डूबकर मर जाऊंगी, मैं जीने लायक नहीं हूँ। ओ साइमन, साइमन, फैंथ्रोफ ने कॉर्नेलिया से कहा, मिस बॉवर्स को बुला लाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। कॉर्नेलिया सिर हिलाकर बाहर चली गई। जैसे ही वो गई, जैकलीन ने फैंथ्रोफ को पकड़ लिया। उसका पैर, बहुत खून बह रहा है, टूटा हुआ है, वो खून बहकर मर सकता है। मुझे उसके पास जाना है। ओ साइमन, मैं कैसे कर सकती ऐसा। उसका आवाज तेज हो गया। फैंथ्रोफ ने जल्दी से कहा, शांत हो जाओ, वो ठीक हो जाएगा। जैकलीन फिर खुद को छुड़ाने लगी। मुझे जाने दो, मुझे डूब मरने दो, मुझे मरने दो। फैंथ्रोफ ने उसे मजबूती से कंधों से पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। तुम्हें यही रहना होगा, हंगामा मत करो, अपने आप को संभालो, मैं कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी कोशिश के बाद जैकलीन ने खुद को थोड़ा काबू में कर लिया। फैंथ्रोफ को राहत मिली जब पर्दे हटे और मिस बॉवर्स, जो एक डरावनी सी किमोनो पहने हुए थी, अंदर आई। उनके साथ कॉर्नेलिया भी थी। अब बताइए ये सब क्या है, मिस बॉवर्स ने कड़क आवाज में पूछा। उन्होंने स्थिति संभाल ली, ना हैरानी ना डर। फैंथ्रोफ ने राहत की सांस ली और जल्दी से डॉक्टर बेसनर की कैबिन की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया और बिना इंतजार किए अंदर चला गया। डॉक्टर बेसनर,
एक जोरदार खराटे की आवाज रुकी और एक चौंकी हुई आवाज आई, हाँ, क्या बात है? अब तक फैंथरॉफ ने लाइट जला दी थी। डॉक्टर ने आंखें मिचमिचाई। वो किसी उल्लू जैसे लग रहा था। साइमन डॉयल को गोली लग गई है। मिस डेवेलफोर्ट ने गोली चलाई। वो लाउंज में है। क्या आप आ सकते हैं? डॉक्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ तेज सवाल पूछे। चप्पल और गाउन पहनकर एक मेडिकल किट उठाई और फैंथरॉफ के साथ लाउंज की ओर बढ़े। साइमन ने खुद को खींचकर खिड़की खोली। वो सिर टिकाकर ताजी हवा ले रहा था। उसका चेहरा एकदम पीला और भयानक लग रहा था। डॉक्टर बेसनर उसके पास आए। हाँ, तो ये क्या है? जमीन पर खून से भीगा रुमाल पड़ा था और कालीन पर एक बड़ा लाल दाग बन चुका था। डॉक्टर ने मुआयना करते हुए एक जर्मन अंदाज में कुछ बोलते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत बुरा है। हड्डी टूटी है और बहुत खून बह चुका है। मिस्टर फैंथरॉफ, हमें इन्हें मेरी कैबिन में ले जाना होगा। ऐसे, हाँ, ये चल नहीं सकते। हमें इन्हें उठाकर ले जाना होगा। जैसे ही उन्होंने साइमन को उठाया, कॉर्नेलिया दरवाजे में दिखी। डॉक्टर ने उसे देखकर संतोष की आवाज में कहा, आह, तुम हो? बहुत अच्छा, हमारे साथ चलो। मुझे मदद की जरूरत है। ये मेरा दोस्त तो पहले से ही पीला पड़ गया है। फैंथरॉफ ने एक फीकी मुस्कान दी। क्या मैं मिस बॉवस को बुलाऊं? उसने पूछा। नहीं, ये युवती ठीक है, डॉक्टर ने कहा। तुम बेहोश नहीं हो जाओगी ना? आप जो कहोगे मैं करूंगी, कॉर्नेलिया ने जल्दी से कहा। डॉक्टर बेसनर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वो लोग साइमन को उठाकर डेक से गुजरे। अगले 10 मिनट केवल मेडिकल ट्रीटमेंट में बीते और मिस्टर जिम फैंथरॉफ को उसका एक भी पल अच्छा नहीं लगा। उसे अंदर से शर्म आ रही थी कि कॉर्नेलिया ने उससे ज्यादा हिम्मत और संयम दिखाया। तो मैं जो कर सकता था कर दिया, डॉक्टर बेसनर ने आखिरकार कहा। तुमने तो कमाल कर दिया मेरे दोस्त। उन्होंने साइमन के कंधे पर सराहना से थपथपाया। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर की और एक इंजेक्शन निकाला। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूँ जिससे तुम सो जाओगे। तुम्हारी पत्नी के बारे में क्या करना है? साइमन ने कमजोर आवाज में कहा। उसे सुबह तक कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो आगे बोला, तुम जैकी को दोष मत देना। सब मेरी ही गलती है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बेचारी को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। डॉक्टर बेसनर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मेरी गलती थी, साइमन ने जोर से कहा। उसकी नजर कॉर्नेलिया की तरफ गई। कोई उसके पास रहना चाहिए। वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर बेसनर ने उसे इंजेक्शन दे दिया। कॉर्नेलिया ने शांत और भरोसेमंद आवाज में कहा, सब ठीक है मिस्टर डॉयल। मिस बॉवस पूरी रात उसके साथ रहेंगी। साइमन के चेहरे पर कृतज्ञता की झलक आई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। आंखें बंद हो गई। अचानक वो चौंक कर बोला, फैंथरॉफ? हाँ डॉयल। वो पिस्तौल, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। लड़के सुबह उसे ढूंढ सकते हैं। फैंथरॉफ ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, मैं जाकर ढूंढता हूँ। वो कैबिन से बाहर गया और डेक पर चल पड़ा। उसी समय मिस बॉवस जैकलिन के कैबिन के दरवाजे पर दिखी। अब वो ठीक है, उन्होंने कहा। मैंने उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया है। लेकिन आप उसके साथ ही रहेंगी ना? हाँ जरूर। मॉर्फिन कुछ लोगों को बेचैन कर देती है, इसलिए मैं पूरी रात यही रहूंगी। फैंथरॉफ लॉन्च की ओर बढ़ गया। करीब 3 मिनट बाद डॉक्टर बेसनर की कैबिन पर दस्तक हुई। डॉक्टर बेसनर? हाँ। मोटा डॉक्टर बाहर आया। फैंथरॉफ ने इशारे से उसे डेक पर बुलाया। सुनिए, वो पिस्तौल मुझे नहीं मिली। क्या कहा? पिस्तौल? वो लड़की के हाथ से गिर गई थी। उसने उसे लात मारी और वो एक सोफे के नीचे चली गई थी। अब वो वहां नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। लेकिन उसे उठाया किसने होगा? फैंथरॉफ ने कंधे उचकाए। वेस्नर ने कहा, अजीब बात है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? थोड़े परेशान और उलझन में दोनों अलग अलग हो गए।